हेलो बच्चों, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 2026 के बोर्ड्स, तो हम उसी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर आपका पेपर लिया है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड कोड नंबर 041 2025-26 का ये सैम्पल पेपर आया था एंड हम इसी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। आई विल बी जनरेटिंग अ प्लेलिस्ट जहाँ पर मैं जो ये पार्ट्स में क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करके आपको डालूँगी, तो आप आगे शेयर भी करें और ख़ुद भी समझें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ A is given to be 2 raised to the power 2, 3 raised to the power x. B is given to be 2 raised to the power 2, 3 into 5. And C is 2 raised to the power 2, 3 and 7. In this particular question, LCM of these ABC is 3780. Okay? And what we have to calculate? We have to calculate x. Concept here is, I hope you know, concept मैं आपको साथ साथ ही रिमाइंड कराती रहूँगी. Whenever we have to calculate the LCM of numbers, always remember you have to take the highest power. And for HCF of any numbers, you have to take the lowest powers. Let us take an example. मान लेते हैं A मुझे दिया है Q क्यूब P and मुझे B दिया हुआ है Q P क्यूब. Then LCM will be the highest power of Q is Q cube and P cube and HCF will be Q into P. वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा रहे हैं. अगर हम देखें तो 2 की जो पावर है दैट इज़ 2 स्क्वायर हाइएस्ट पावर. 3 की पावर ऑब्वियसली 3 रेज़ टू पावर x लेंगे. 5, 7 and it is 3780 as it is given in the question. So 4, 35, 3x is equal to 3780 and it is coming out to be 140 into 3 raised to the power x, 3780. 3 raised to the power x is equal to 3780 divided by 140, which is 27. So 3 raised to the power x is 27, 3 raised to the power x is 3 cube, that is x is coming out to be 3. So answer is 3. So the next question is the shortest distance in units of point 2, 3 from y-axis. So when we are taking two, 3 points, so this is x-axis and this is y-axis. So these are the points 0, 1, 2 x-axis पे, 1, 2, 3 y-axis पे. So 2, 3 point will be here only. तो अगर आप देखें तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वाई एक्सिस से डिस्टेंस. सो वाई एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा. ओके, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है? 2. सो आंसर हियर विल बी 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द लाइन्स गिवन बाय 2 लाइन्स आर गिवन 3x plus 2ky is equals to 2, 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are not parallel. Not parallel means they are consistent, है ना? So first of all, जब भी कभी हमें कंपैरिजन करना है किन्हीं भी दो इक्वेशंस का, तो आपकी इक्वेशन का जो फॉर्म है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 हो दोनों का ही, और a1x plus b1y इज इक्वल टू c1 हो. ओके, दोनों ही कंपैरिजन जब करोगे तो एक जैसे फॉर्म में होनी चाहिए. सो 3x plus 2ky इज इक्वल्स टू 2, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x plus 5y इज इक्वल्स टू -1, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. सो as the lines are not parallel, that means a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. That means 3 by 2 is not equal to 2k by 5, and your answer will be k is not equal to 15 by 4. So your option number B will be correct. Now the next question is quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. So we are having a circle. So उस सर्कल को एक रेक्टेंगल
सर्कमस्क्राइब कर रहा है। रेक्टेंगल थोड़ा रेक्टेंगल नहीं बना, बट लेट इट बी। ABCD is a, oh yeah, as they have given quadrilateral, ठीक है, ABCD is a quadrilateral, ठीक है, and BC is 7 centimeter, CD is 4 centimeter, AD is 3 centimeter. You have to calculate AB. So अगर आपने इस चैप्टर की NCERT बड़े अच्छे से की है तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे प्रूव करते हैं, दैट AB plus CD is equal to AD plus BC. Yes, the concept has to be proved, but वो 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कहीं आपको समझाऊंगी, बट here you can easily apply. AB plus CD is equals to BC plus AD. Now apply the values. AB आपको नहीं पता, CD is 4 and 3 plus 7, AB will be 6 centimeter. So answer will be 6 centimeter. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको रिटन में भी आ सकता है, 1 मार्क में तो दिया ही हुआ है. क्वेश्चन इज सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इज एक्स, देन सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा क्या होगा. सो ऐसे क्वेश्चन में यू हैव टू थिंक वाइजली कि क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमने अब तक चीज़ें की हैं. NCERT के क्वेश्चंस में बहुत सारे ट्रिक्स वाले भी क्वेश्चन हैं, तो इसको देखते मुझे लगता है मुझे इसको 1/secant थीटा कर लेना चाहिए एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द ऑपोजिट साइन. दैट मीन्स रेशनलाइज कर दिया मैंने इसे. मेरे पास आया secant थीटा माइनस टैन थीटा डिवाइडेड बाय secant स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा. एंड आई होप आपको फॉर्मूला याद है, secant स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज़ 1. सो secant थीटा माइनस टैन थीटा इज़ 1/x. So the option is D. Now, which of the following is not a quadratic equation? The most basic question. Okay, तो इसमें हमें hit and trial लगाना है obviously, and you have to be bit fast. Okay, यहाँ पे x square plus 4 plus 4x होगा और यहाँ पे 2x plus 6. किसी भी हाल में x square कट नहीं रहा. Yes, it is a quadratic. अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इधर है. अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6x करूँ तो येस अगेन यहाँ पे 9 की टर्म है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर किसी भी हाल में कटेगा नहीं. ओके, सी वाले में अगर हम देखें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. तो दैट मीन्स अगेन एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म नहीं हो रही बिकॉज यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 3, तो वो एडअप होके आगे जाके 4 या -4 होने वाले हैं. एंड द लास्ट वन इज दिस D1. इस भाई साहब को देखते हैं. x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. अगर जब तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर. जैसे हमारा काम यही खत्म हो जाता है, बट चलो कोई बात नहीं, आपको लिख के बता देती हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. जो भी आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो रही है. दैट मीन्स नॉट अ क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक होने के लिए इक्वेशन मस्ट बी ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए कैन नेवर बी 0, बी और सी 0 हो सकते हैं. सो योर आंसर इज आंसर नंबर डी. दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. येस, दिस 7th क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये एक बार ज़्यादा मार्क्स के लिए भी आया हुआ है एग्जाम में, बट यहाँ पर इन्होंने 1 मार्क के लिए डाला है. तो लेंदी क्वेश्चंस कैन बी देयर इन योर एग्जाम फॉर 1 मार्क ओनली. तो आपको अपनी स्पीड इतनी बढ़ानी है कि कैलकुलेशंस आपकी फास्ट होनी चाहिए ताकि आप परफॉर्मेंस जो है वो विद इन गिवन टाइम दैट इज़ 3 आवर्स के बीच में कर पाए. तो गिवन बिलो इज़ अ पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स. आई होप यू नो ओलंपिक रिंग्स हैं ये, और जिसमें 5 कॉन्क्रेंट सर्कल्स हैं जिनका रेडियस है 1 सेंटीमीटर ईच. ओके जी. इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे दैट द कोड फॉर्म बाय जॉइनिंग, मतलब जो कोड है वो भी 1 सेंटीमीटर की है. दैट मीन्स अगर ये एक सर्कल है, इस सर्कल की ये जो कोड है, कोड जो है वो भी 1 की है, ये भी 1 की. दैट मीन्स ये कैसा ट्राइंगल बना? इक्विलैटरल ट्राइंगल. मीन्स जो आपका एंगल है, सेंटर में जो एंगल होता है दैट इज 60 डिग्री. एक काम तो हमने निकाल लिया. ओके गाइस, सो आपको टोटल एरिया बताना है डॉटेड रीजन का. अगर तुम डॉटेड रीजन को ध्यान से देखो बच्चों, ये 1 रीजन, ये 2 रीजन, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सेगमेंट का ही एरिया बन रहे हैं और एक सर्कल के अंदर 2 सेगमेंट्स जो है वो आप लाई कर रहे हैं. 2, अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करूँ 3, 4,
5, 6, 7 and 8. 8 portions. That means 8 into area of segment. Okay. So 8 into एरिया ऑफ सेगमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट मीन्स थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस द एरिया ऑफ ट्राइंगल. यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल है, ये जो इस ट्राइंगल की बात हो रही है. अगर ये तो आपको पता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इज़ 1. एज द आंसर हेयर इज़ इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है. ऑप्शंस को पहले ही चेक कर लोगे आप. ओके. बहुत बार ऐसा होता है कि आंसर पाई में ही होता है, जैसे इसमें देखो पाई में ही आंसर है और बच्चे जो हैं वो पूरी शिद्दत से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. उसके बाद जब वो देख रहे हैं एग्जाम पेपर के अंदर, शीट के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो वो देख रहे हैं कि पाई की वैल्यू तो पुट ही नहीं की, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है. ठीक है. सो यहाँ पर एरिया जो होगा ट्राइंगल का वो क्या होगा, द ट्राइंगल का एरिया विल बी, ट्राइंगल का जो एरिया है दैट विल बी √3 अपॉन 4a स्क्वायर, बिकॉज द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके जी. सो अदरवाइज अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट किसी भी तरीके के ट्राइंगल का एरिया, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे निकलता है, तो दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल. द कंडीशन इज जो एंगल है वो गिवन होना चाहिए, है ना. ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जिसको मैं कलर कर रही हूँ वो गिवन होना चाहिए. अगेन ना अब हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं. दिस इज़ 1/6, दिस इज़ पाई, दिस इज़ √3/4 एंड आई होप आपको आंसर बड़ी ईजिली दिख गया है. एंड द ऑप्शन नंबर D is the correct answer. Okay. Next is a pair of dice is tossed. A probability of not getting the sum 8 is. I hope you know, 2 dice को अगर मैं गिरती हूँ तो 36 आउटकम्स आते हैं. 36 आउटकम्स कौन से होते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 6 तक, एंड 2 1 2 2 2 3. ठीक है. आई होप आप समझ रहे हैं. एंड ऐसे 6 1 6 2 एंड सो ऑन 6 6 तक. नाउ इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अस कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 चाहिए. नॉट गेटिंग द सम 8 चाहिए मतलब पहले हम देख लेते हैं ना सम 8. अब पहले लिखते हैं टोटल आउटकम्स कितने हैं, जो हमने ऊपर भी लिखा है 36. सम 8 का मतलब है हम बात कर रहे हैं 2, 6, दैट मीन्स 6, 2. हम बात कर रहे हैं 3, 5, 5, 3 एंड 4, 4. ये हमें नहीं चाहिए. दैट मीन्स 5 ऐसे हमारे पास आउटकम्स हैं जिसमें 8 आ रहा है. ठीक है. सम नॉट 8, दैट मीन्स 36 में से 5 निकाल देंगे तो दैट मीन्स 31 ऐसे आउटकम्स हैं जिनके अंदर 8 नहीं आ रहा है. सो प्रोबेबिलिटी of not getting 8 is 31/36 and the option number B is the correct option. Okay. Yeah. If 2 sin 5x, why I'm writing each and every point, each and every step, because यही question आपको 2 मार्क में भी आ सकते हैं. So we have to prepare thoroughly. आपने ऐसे नहीं सोच के जाना कि ये तो MCQ है, ये कहाँ आएगा. आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. ऐसे क्वेश्चंस में जो भी आपको साइन के लेफ्ट साइड पे दिख रहा है उसको उठा के इक्वल टू के राइट साइड ले जाइए. साइन 5x इज इक्वल टू, आई होप आपने वो टेबल याद कर लिया है. अगर नहीं किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन पक्का होता है. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, उसको अच्छे से thoroughly लर्न कर लें. ठीक है. 5x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 60/5. बताओ क्या होता है. Yes, it is 12 degree. So your answer is 12 degree. So let's jump to the next question for this video. The sum of two numbers is 1 2 1 5. दो numbers का sum 1 2 1 5 है. उनका HCF जो है वो 81 है. आपको बताने हैं possible pairs of such numbers. अब जो दो numbers हैं उनका अगर HCF 81 है, that means वो 81 के multiple होंगे. That means एक number 81x है, दूसरा नंबर 81y है, that is 1 2 1 5. Okay. So let's take 81 common. X plus y is equals to 1 2 1 5 and your x plus y is equals to 15.
सो लेट्स सी ऐसे कितने पेयर्स बनते हैं. वी हैव 1,14, yes. We have 2,13. We have 4,11, and we have 7,8. Okay. Yes. 2,13, 4,11, and 7,8. These are the 4 pairs जो हमारे बन रहे हैं. Okay. So answer is coming out to be 4.